Good morning, dear students. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today we are going to start chapter number 16. Right? In last class we completed the paragraph writing. हम लोगों ने paragraph writing complete किया था last class में, ठीक है? And we studied there that there are two types of paragraph writing. Right? There were two types of paragraph writing. The first one was personal narrative, and the second one was descriptive paragraph. Right? So what we are doing is we are doing rightly currently we are doing only two right now. ठीक है, हम अभी दो ही कर रहे हैं. And the remaining two, right, which is on page number 98, है ना, जो remaining है, that we will be doing later on. ठीक है, वो हम थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, that you will have to write. Right, the first one is write a paragraph on the topic importance of exercise. Right, and the second one is write a paragraph on the topic computer. These two topics will be given to you and you will have to write those paragraphs. Right, in today's session we will be covering chapter number 16, that is interjection, that is interjections. Right, so we will be covering that chapter today, and we will be discussing a little bit part of the chapter and vocabulary. Right, we are less only five vocabularies, so I thought that let's do some डिस्कशन ऑफ चैप्टर एज वेल, है ना. आज के ही सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली द इंटरसेक्शंस आर. राइट, so let's begin with that. First of all, we are starting with the vocabulary part, vocabulary of this chapter, that is interjection. The first word we have is bravo. B-R-A-V-O. Bravo. Bravo basically means what, dear students? Well done. All right. Let's suppose your friend or any of your brother or sister won something in any competition, right? Won a first medal, won gold medal, bronze medal, silver medal, got first position, second position, or third position, or something like that. So what you can say to them, bravo. What you can say, bravo, you played well, और आपने बहुत ही अच्छा खेला. तो which word you will use? You will use bravo, B-R-A-V-O, because that means well done. Well done मतलब बहुत ही अच्छा आपने किया. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रेज. Praise. Praise. Praise means what, dear students? Praise means admire. Praise means क्या होता है? Admire होता है. Praise means क्या होता है, dear students? Admire, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना. ठीक है, जनरली आई डू प्रेज यू. ठीक है, दोज हु सिट वेरी प्रॉपरली, दोज हु कंप्लीट देयर वर्क, व्हाट डज टीचर डू? टीचर प्रेजेस देम. ठीक है, टीचर उन सबको प्रेज करती है, टीचर उन सबको एडमायर करती है कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया. टीचर गिव्स यू गुड, टीचर गिव्स यू वेरी गुड, टीचर गिव्स अ स्टार. सो दैट दोज ऑल थिंग्स आर व्हाट? दोज ऑल थिंग्स आर एडमायरेशंस. वो सब क्या है? वो आपकी प्रशंसा है, वो आपकी तारीफ एक तरीके की. सो दैट इज बेसिकली योर प्रेज. वो आपकी प्रेज कर रहे हैं. राइट. Word number 3, disappointment. Its spelling is very important, dear students. It's little lengthy, है ना, बहुत lengthy है, but बहुत simple सी. देखिए इसको तीन parts में break कर दीजिए. The first one is disappoint. The next word is appoint, and the last is ment. Disappointment. So the complete word is what? The complete word is disappointment. Disappointment means what? Sadness. यानी कि जब हम किसी चीज को लेकर के disappoint हो जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज को लेकर के दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मींस व्हाट? जब हम किसी चीज को लेकर के निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दैट इज डिसअपॉइंटमेंट, दैट इज सैडनेस. राइट. Word number 4, that is heaven. Heavens. Heavens means what? Paradise. Heavens means क्या होता है, dear student? Paradise. ठीक है. What now heaven and paradise means? हम बोलते हैं स्वर्ग. राइट, स्वर्ग में जगह होना, इस तरीके से. ठीक है, स्वर्ग जो एक लोक होता है, ठीक है, स्वर्ग नरक जो होता है. राइट. सो हेवन इज व्हाट? हेवन इज स्वर्ग. ठीक है, और व्हाट डज नरक मीन? स्वर्ग और नरक हम बोलते हैं, तो स्वर्ग मीन्स तो हेवन और पैराडाइज हो सकता है, और नरक का मतलब क्या होता है? हेल. ठीक है, नरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल. अपन नहीं बोलते जनरली गो टू हेल. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. Okay, word number 5 we have is broadcasted. BROADCASTED. ब्रॉडकास्टेड या ब्रॉडकास्ट. ठीक है, ट्रांसमिट बाय रेडियो और टेलीविजन. आप लोग टीवी न्यूज चैनल्स, रेडियो वगैरह आप लोग सुनते होंगे. ठीक है, मोबाइल में रेडियो आता है, एंड टेलीविजन तो आप लोग ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स देखते ही देखते हैं. ठीक है, सो ब्रॉडकास्ट मीन्स व्हाट, डियर स्टूडेंट? जो भी चैनल आपको वो शो कर रहा है,
ठीक है, देखिए जो टेलीविजन चलता है वो बेसिकली किस पे चलता है, रेस पे चलता है बेटा। डिफरेंट डिफरेंट रेस जो हैं वो आपके ऊपर टीवी एंटीना में आती हैं और वो सब आपको वहां पे शो हो जाता है, टीवी के बॉक्स में शो हो जाता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, किसी चीज को भेजना है, किसी चीज को निकालना। तो ब्रॉडकास्ट मीन्स व्हाट, वो किसी चीज को ट्रांसमिट करते हैं, वो आपको लिसन या विजिबल हो जाती है किसके थ्रू, रेडियो और टेलीविजन के थ्रू। रेडियो के थ्रू तो आप सिर्फ हियरिंग कर सकते हैं, आपको सिर्फ वही सुनाई देगा, और टेलीविजन के थ्रू आप उन चीजों को विजुअलाइज भी कर पाएंगे, यानी कि आप उनको देख भी पाएंगे। सो दैट इज ब्रॉडकास्टेड, राइट। सो ब्रॉडकास्टेड मीन्स ट्रांसमिट बाय टेलीविजन और रेडियो, ठीक है, रेडियो और टेलीविजन, right? So this was about the vocabulary session. Now we are moving to the chapter explanation part. ठीक है, चलिए, before moving to chapter explanation or before understanding what actually the intersections are, intersections क्या होते हैं, वो पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग कुछ examples देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ examples लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले उन examples को read कर लेते हैं। देखिए first example क्या है, ouch that hurts, है ना। लेट्स सपोज क्या हुआ कि आपके ब्रदर और आप थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे ऐसे ही, ठीक है, और आपके ब्रदर ने आपको क्या किया, आपके ब्रदर ने आपको मस्ती में थोड़ा सा पिंच कर लिया, ठीक है, मतलब बहुत स्लाइटली, है ना, वैसे जानबूझ के नहीं, मस्ती के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा छोटा सा पिंच कर लिया आपको। तो व्हाट यू कैन से, आउच दैट हर्ट्स, यानी कि ये मुझे पेन करता है। यहाँ पे हाँ, ओके, आउच दैट हर्ट्स, यानी कि ये मुझे क्या करता है, ये मुझे पेन करता है। सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। सो वेन एवर वी हैव टू टेल अबाउट आवर पेन, जब कभी भी हम क्या करते हैं बेटा, हम अपने पेन को एक्सप्रेस करते हैं। हमें जब भी पेन हो रहा है, तो हम जब भी अपने पेन को बताते हैं, जब भी हम हमारे दर्द को बताते हैं, जो भी हमें जहां पे भी हर्ट हो रहा है उसको बताते हैं, सो फॉर दैट पर्पस वी यूज द वर्ड आउच। विच वर्ड वी यूज, आउच, ठीक है, आप लोगों ने जनरली यूज भी किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ व्हाट ए ग्रेट आइडिया, ठीक है। लेट सपोज किसी ने आपकी क्या मतलब, किसी ने आपको कोई आइडिया दिया, क्या, लेट सपोज आप पढ़ाई कर रहे थे, यू वर स्टडिंग, और ठीक है, एक फ्रेंड आया, और मतलब आप पढ़ाई से बोर हो चुके थे, पढ़ाई करते करते थोड़े बोर हो चुके थे, और मम्मी ने कहा कि बाहर खेलने भी नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड आया आपके घर पे और उसने क्या बोला, लेट्स प्ले लूडो, है ना, मम्मी ने तो बाहर जाने से मना किया था, अंदर तो खेल ही सकते हैं। आपके फ्रेंड ने क्या बोला, लेट्स प्ले लूडो, तो व्हाट यू से, वाह व्हाट ए ग्रेट आइडिया, तो आप क्या कह रहे हो उसको कि वाह क्या मस्त आइडिया है, क्या एकदम ग्रेट आइडिया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पे ही खेल सकते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रेजिंग, टू whom you are praising, आप किसकी तारीफ कर रहे हो, किसको प्रेज कर रहे हो, किसको एडमायर कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को और उसके आइडिया को एडमायर कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ओ नो द पावर वेंट ऑफ, लाइट चली जाती है, लाइट जब चली जाती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कट जब होता है, तो व्हाट वी कैन से, वी कैन सिंपली से द पावर वेंट ऑफ। द पावर वेंट ऑफ मींस व्हाट, द पावर वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, लाइट का चला जाना, इलेक्ट्रिसिटी कट होना। इलेक्ट्रिसिटी कट को क्या बोलते हैं, द पावर वेंट ऑफ, ठीक है। तो कभी भी आपके घर पे लाइट चली जाए तो आप मम्मी को क्या बोल सकते हो, मम्मा द पावर वेंट ऑफ। और नाउ व्हाट यू आर सेइंग, oh no the power went off, so you are showing disappointment. लेट सपोज आपने 2 आवर्स स्टडी करी, आज कितनी देर स्टडी करी, 2 आवर्स, और 2 आवर्स स्टडी करने के बाद आपने, आपकी मम्मी ने आपको परमिशन दे दी कि चलो ठीक है थोड़ी देर टीवी देख लो, और जैसे ही आपने टीवी स्विच ऑन किया, द पावर वेंट ऑफ, तो अब आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। सो फॉर दैट वी कैन से, ओ नो द पावर वेंट ऑफ, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन पावर चली गई, ठीक है। तो इन ऑल दीज 3 sentences, in these sentences, ouch, wow and oh no are the words that express different feelings. ये क्या express करते हैं बेटा, ये क्या express कर रहे हैं, different feelings को express कर रहे हैं। These words are called interjection, और इन्हीं words को हम क्या कहते हैं dear students, interjection कहते हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। तो इनमें जो वर्ड आ रहे हैं, ये आउच हाईलाइटेड है रेड वर्ड से, रेड मार्क से, रेड कलर से, वाओ, ओ नो, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर इंटरजेक्शन। ये सब क्या है बच्चों, इंटरजेक्शन ही है।
I hope that is clear. So what are intersection? That is clear to you. Intersections are the words which are used to express our feelings, जो हमारे ideas को, हमारी feelings को express करने के काम में आते हैं. So here a proper definition is given to you. The words which express, जो कि एक्सप्रेस करते हैं some sudden feelings, है ना. जब भी हम हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस कहते हैं. जब भी हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जिनसे हमारी सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है, उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है. उनको क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? इंटरजेक्शन कहा जाता है. ठीक है. we always put an exclamatory sign. exclamatory sign कैसा होता है डियर स्टूडेंट? ये ऐसा exclamatory sign होता है आफ्टर एन इंटरसेक्शन. जब भी इंटरसेक्शन वर्ड आएगा तो हम उसके बाद में क्या साइन मार्क करेंगे बेटा? इंटरसेक्शन का, सॉरी एक्सक्लेमेटरी का साइन आप मार्क करेंगे. एंड व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी साइन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड देन फुल स्टॉप just below it, right? So यहाँ पे I think you can see this. Yeah, so this is your exclamatory sign which you have to use after intersections. So you can see in the examples as well. Above in the example what we have done, we have marked exclamatory mark after every intersection word. ouch के बाद भी exclamatory mark है बेटा, wow के बाद भी है, और oh no के बाद भी intersection का mark, exclamatory का mark हमने लगा रखा है. Right? So this was all about your intersections. There are some important notes as well which we have to keep in our mind that we will be doing in tomorrow's session. Right? So that's all for today's session. I hope that you all have understood the vocabulary and what actually the intersections are. Intersection words क्या होते हैं, that also you have understood. Right? So that's all for today's session. Thank you everyone for attending it.